সবিশেষলৈ মই শান্তনু মহন্তই স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাজ্যত কা বিৰোধী আন্দোলন অব্যাহত আছে। ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰো ত্ৰিপুৰাত বিশেষকৈ কা বিৰোধী আন্দোলন চলিছে। দেশৰ অন্য প্ৰান্ততো কা বিৰোধী আন্দোলন চলিছে। কিন্তু এটা কথা আমি বুজি লোৱাটো উচিত হ'ব যে দেশৰ অন্য প্ৰান্তত যি ধৰণে আন্দোলন চলিছে আৰু অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি প্ৰসংগ সেয়া পৃথক, তাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। কি পাৰ্থক্য, কিয় পাৰ্থক্য, সেই প্ৰসংগ আজি আমি উত্থাপন কৰিম। লগতে আপোনালোকে সঘন এটা বাক্য শুনা পায় যে কা যদি গৃহীত হয় বা কা আইন গৃহীত হ'ল, কেব গৃহীত হ'ল, এতিয়া কা হ'ল, কিন্তু কায়ে কি কৰিব, অসমক দ্বিতীয় ত্ৰিপুৰাত পৰিণত কৰিব বুলি শংকা এটা ব্যক্ত কৰা হৈছে। কিয় দ্বিতীয় ত্ৰিপুৰা হ'বলৈ যাব কা অহাৰ পিছত? দ্বিতীয় ত্ৰিপুৰা বা ত্ৰিপুৰাত আচলতে হৈছে কি, সেই কথা নিশ্চয়কৈ বহলভাৱে বুজাৰ প্ৰয়োজন আছে। ত্ৰিপুৰাৰ যেতিয়া প্ৰসংগ উত্থাপিত হয় এই কথাটো আপুনিও জনাটো বা বুজাটো দৰকাৰ যে ত্ৰিপুৰাত আচলতে কি হৈছে। সেইবাবে আজি আমি আপোনালোকক ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰসংগৰে, ত্ৰিপুৰাৰ দৃষ্টিকোণেৰে আমি চাব বিচাৰিম কায়ে আচলতে আমাক কি কৰিব পাৰে। সঘন কোৱা হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ জনগাঁথনি সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈ গৈছে। ত্ৰিপুৰাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক আছে সেই খিলঞ্জীয়া লোকসকল এতিয়া সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছে। সৰ্বমুঠ ৩৭ লাখ লোক ত্ৰিপুৰাত বাস কৰে। ত্ৰিপুৰাৰ জনসংখ্যা প্ৰায় ৩৭ লাখ। তাৰ ভিতৰত যিটো হিন্দু বঙালীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা হৈছে, হিন্দু আচলতে বাংলাদেশীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা হৈছে, প্ৰায় 18 পৰা 20 লাখ লোক তেওঁলোকৰ জনবসতি। আৰু যি খিলঞ্জীয়া লোক আছিল ত্ৰিপুৰাত, যিসকল খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আছিল, তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 12 লাখত পৰিণত হৈছে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত ত্ৰিপুৰাৰ এতিয়া ৰাজনীতি, ত্ৰিপুৰাৰ অৰ্থনীতি সেইসকল লোকৰ হাতত আছে, যিসকল লোক আচলতে ত্ৰিপুৰাৰ স্থানীয় বাসিন্দা নাছিল। আৰু যিসকল ত্ৰিপুৰাৰ স্থানীয় বাসিন্দা আছিল সেইসকল লোক আজি সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছে। এই ত্ৰিপুৰাবাসীৰ চিঞৰ শুনিব কোনে, সেই সম্পৰ্কে আজি আমাক জনাব আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি আজি লৈ আহিছোঁ ত্ৰিপুৰাৰ ৰজা প্ৰদ্যুৎ দেৱ বৰ্মন। আচলতে যি মাণিক্য সাম্ৰাজ্য আছিল সেই সাম্ৰাজ্যৰ উত্তৰাধিকাৰী। আচলতে ত্ৰিপুৰাত যি ৰাজবংশীয় এটা পৰম্পৰা চলিছিল, সেই পৰম্পৰাৰ পিছত আচলতে ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত, ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ভাৰতৰ লগত সংলগ্ন হ'ল, ভাৰত ইউনিয়নৰ লগত সংলগ্ন হ'ল, আৰু তাৰ পিছত কি ধৰণে ত্ৰিপুৰা আজি ত্ৰিপুৰাত পৰিণত হৈছে সেই সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰদ্যুৎ দেৱ বৰ্মনক আমি স্বাগতম জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেখেতৰ যি পৰম্পৰা, মাণিক্য যি সাম্ৰাজ্য, এটা দীঘলীয়া পৰম্পৰাৰ মাজেৰে আহি আজিৰ এই সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছে। কায়ে কি ধৰণে ত্ৰিপুৰাক আচলতে प्रभाव विस्तार কৰিছে সেই সম্পৰ্কেও তেখেতে আমাক জনাব। स्वागत है आपको प्राग न्यूज़ में। मैं शुरू करता हूँ इस सवाल से कि का विरोध असम में भी हो रहा है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। जब जब समझाया जाता है कि असम दूसरा त्रिपुरा बन जाएगा, और जो का सपोर्ट करते हैं वो लोग बोलते हैं कि अगर का नहीं मिले व हम लोग नहीं इम्प्लीमेंट किए तो दूसरा कश्मीर बन जाएगा। तो लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर ही। तो त्रिपुरा में ऐसा क्या है जिसको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नहीं कहाँ आएगा तो असम दूसरा त्रिपुरा बन जाएगा? त्रिपुरा क्या बन गया है अभी, ये मतलब थोड़ा समझाइए आप। शांतनु, सबसे पहले लेट मी टेल यू थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे आपने यहाँ में निमंत्रण किया, अच्छा है, क्योंकि आज मुझे लगता है कि त्रिपुरा और असम, मेघालय भी टू अ सर्टेन डिग्री, अगर हम एक संग नहीं हुए तो आपने देखा है कि नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल को उन्होंने बांट के हमें अलग कर दिया है। और 3 राज्य हैं, त्रिपुरा, असम और मेघालय, जिनका डायरेक्ट बॉर्डर है बांग्लादेश के संग, उनको आपने एग्जेप्ट नहीं किया है। क्या लॉजिक है मुझे मालूम नहीं। सब लोग कहते हैं कि मुझे दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना है। आपने शुरुआत में भी कहा वाई डोंट यू वांट टू बी ए सेकंड त्रिपुरा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्रिपुरा एक हिस्टोरिकल किंगडम था, जैसा आपका अहोम का किंगडम था, जैसा मणिपुर का किंगडम था, कोच का किंगडम था, बिल्कुल दिमासा का था। हमारा भी त्रिपुरा का एक किंगडम था, स्वाधीन त्रिपुरा नाम से। हम मुगल के अंदर नहीं आए, मुगल से हमने लड़ा, मुगल को हमने हराया, कभी हारे लेकिन फिर से हमने हराया। अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ के नीचे भी नहीं आए, जब आराकान का राजा आया तभी भी उनके नीचे नहीं आए। त्रिपुरा एक इंडिजिनस किंगडम था, जहाँ में हमारे लोग वहाँ में शासन करते थे, राज करते थे। 1940 में बंगाल में अकाल पड़ा, तो मेरे ग्रैंडफादर ने कहा कि अकाल पड़ा है तो आ जाइए, तो शरणार्थी को थोड़ा जगह दे देते हैं। 46 में नोआखाली में राइट्स हुआ, सब ने फिर से कहा कि महाराजा अब कुछ
कि जी आप भी हिंदू हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा शरणार्थी को रख देता हूँ। 48 में मेरी दादी कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को 300 एकड़ ज़मीन दी और कहा कि रहिए, रेफ्यूजी बनकर रहिए, लेकिन यहाँ रहिए क्योंकि आपको ईस्ट पाकिस्तान में मारा जा रहा है। उसके बाद हम पहली बार त्रिपुरा ने डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान का एक अंग बनना चाहते हैं। 1949 में हम त्रिपुरा के साथ, इंडिया के साथ आ गए। उस समय भी हम 80% थे, हमारा जो पॉपुलेशन, जब इंडिया के साथ 80%। आप देखेंगे उसके बाद जैसा इन्फ्लक्स हुआ है, और ये जो कहा जा रहा है कि हम दूसरा कश्मीर नहीं बनना चाहते, कश्मीर में कश्मीरी पंडित को ओवरनाइट भगाया गया, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस किया गया, इकोनॉमिकली आपने उनको खत्म किया। त्रिपुरा में ऑपोजिट हुआ है। ये जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं जो आए हैं बांग्लादेश से या ईस्ट पाकिस्तान से, आज उनका पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अगर आप स्टेटिस्टिक्स को भी देखेंगे तो एडीसी एरिया जहाँ में हमारे तिपरासा जो इंडिजिनस लोग रहते हैं, हमारा पर कैपिटा ग्रोथ 16 to 17,000 है। अगर आप अगरतला टाउन में जाके देखेंगे या धर्मनगर या उदयपुर जहाँ में लार्जली नॉन इंडिजिनस पॉपुलेशन रहते हैं, तो उनका पर कैपिटा इनकम है 40,000 ओके, फैमिली का। तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हमसे ज़्यादा कमाते हैं। गवर्नमेंट का स्टेटिस्टिक्स कहता है। आपने कहा है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए हम इनको रख रहे हैं हिंदुस्तान में, ठीक है, आपने किया है। अब कितना रखें? अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो त्रिपुरा में लागू हुआ, 40 में किया, 46 में किया, 48 में किया, 56 में किया, 65 में किया, 71 में किया। आज हमारा पूरा ब्यूरोक्रेसी बाहर के लोगों से है, हमारे मिनिस्टर्स एमएलएस बाहर से हैं। तो वो लोग क्या शरणार्थी बन के रहे या सिटीजन बन गया? सिटीजन्स कैसे बन गए, ये सवाल कौन बोलेगा? और हमको इतना प्यार है अपने पड़ोसी से, तो हम हिंदुस्तान के अंग क्यों बने? हम भी तो हिंदुस्तान के हैं। ये प्यार पहले हमारे ऊपर आप दिखाइए। बिल्कुल। और ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स है। शुरुआत में जिस पार्टी में मैं था, मेरे पिताजी थे, कांग्रेस ने किया, आज बीजेपी कर रही है। वो लोग पनाह दे रहे थे पहले, दोनों ने किया, दोनों नेशनल पार्टीज ने ये वोट बैंक पॉलिटिक्स किया है। और हमारे साथ, जब मैं हम बोलता हूँ, मैं छोटे दिल से नहीं बोलता, मैं हम बोलता हूँ तो मैं आसाम का पॉपुलेशन को भी बोलता हूँ, असमिया को भी बोलता हूँ, अहोमिया को भी बोलता हूँ, कार्बी, दिमासा, बोडो को भी बोलता हूँ। उनके साथ भी धोखा हुआ है, हमारे साथ भी धोखा हुआ है। और ये जो दूसरे स्टेट्स है ना, जो उनको लगता है कि आईएलपी आने से वो बच गए, कुछ नहीं बचा। हमको भी बहुत प्रोमिसेस, आश्वासन दिया गया था जब हमने मर्ज किया था। जैसे आसाम में आसाम अकॉर्ड हुआ, हमारे संग त्रिपुरा अकॉर्ड हुआ, एटीटीएफ अकॉर्ड हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। कुछ नहीं मतलब पड़ता है। जब समय आएगा वो हमको एक एक करके, अलग अलग करके, तोड़ के डिवाइड कर देंगे। तो आईएलपी भी तोड़ सकते हैं? आईएलपी तोड़ने के लिए तो आपको 10 मिनट लगेगा। कोई ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा आपको आईएलपी तोड़ने के लिए। और दूसरा बात है, आईएलपी आपको 6 शेड्यूल एरिया में रोकने से एंटर नहीं करता, आप परमिशन लेके जाएंगे, लेकिन जो आता है उनको तो डॉक्यूमेंट देने का दरकार भी नहीं। अमित शाह ने खुद कह दिया कि पार्लियामेंट में अगर आप हिंदू हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हिंदू हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट देने का दरकार नहीं। तो अगर तो आज है 24 दिसंबर, तो आप समझिए कि कल, मतलब कि कल 23 दिसंबर को कोई आ जाए और वो अथॉरिटी को बोले कि मैं 2013 में आया, आपको तो कोई डॉक्यूमेंट देने का दरकार नहीं। तो कट ऑफ ईयर का मतलब ही क्या हुआ? जब आपको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप कट ऑफ ईयर रख के क्या करेंगे? आज भी कोई आ सकता है और बोल सकता है कि मैं 2013 में आया। हमारा बाउंड्री खुला हुआ है। और आप देखिए, ये जो लोग आएंगे जिनको सिटीजनशिप मिलेगा, कल बीएसएफ जवान वो बनेंगे, कल वही आपका मिनिस्टर एमएलए बनेगा, कल वही आपका ब्यूरोक्रेसी में रहेगा। जैसे त्रिपुरा में हुआ है, जैसे त्रिपुरा में हुआ है।
जो लोग आए उन्होंने ही अलाउ किया बांग्लादेशी को आने के लिए, क्योंकि पूरा सिस्टम उनके हाथ में चला गया। अच्छा, ये कैसे चला गया? धीरे धीरे क्या हुआ था, मतलब पॉलिटिकली कैसे आप चला देखिए, आज 60 सीट्स में 20 हमारे लिए रिजर्व्ड है। आज त्रिपुरा में 70 साल में सिर्फ दशरथ देव को 3-4 साल छोड़ के अच्छा, हमारे पास एक इंडिजिनस मुख्यमंत्री नहीं बना। और हर मुख्यमंत्री का एक का रूट था, निपेन चक्रवर्ती का रूट था पश्चिम बंगाल में, बहुत लोगों का रूट था बांग्लादेश में, और हमारे पास बिहार से भी मुख्यमंत्री बन गए। तो इसका मतलब क्या है? हमने क्या गलती की? हमने कहा कि हिंदुस्तान एक राज्य जो 800 साल 1000 साल तक कोई हमें दबा नहीं सका। हमारा एक इतिहास था, हमारा वहाँ में राजा थे, हमारा एक पूरा लैंग्वेज था, कल्चर था, सभ्यता था। वो राज्य जो 800 साल तक मुगल नहीं हरा सका, अंग्रेज नहीं दबा सका, आज 70 साल में हमने, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने अलाउ किया है बांग्लादेश से आदमी को आने के लिए और हमें दबाने के लिए। अभी भाषा का क्या हाल है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बन गया? अभी आप देखिए, मैंने थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति है वेस्ट बंगाल से, उसने मुझे एक SMS भेजा कि आसाम का लैंग्वेज हम बराक वैली में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? इसी तरह हमारा लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अच्छा, आपने सेकंड क्लास स्टेटस दिया है। भाषा सिर्फ लैंग्वेज नहीं होता, एक आइडेंटिटी होता है। बिल्कुल। आप, वो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। आप हमारे मंदिर में जाइए, मैंने फिर से कहा, मैं हिंदू हूँ। त्रिपुरा सुंदरी हमारा है, 14 देवता हमारा है, खोंगलोमा, केर, कार्ची हमारा है, बाबा गरिया हमारा है, सुब्राई हमारा है, ये सब हमारे भगवान है। जैसे आपका कामाख्या है, हमारे मंदिर में कह दिया कि आप बलि मत करो। अच्छा, क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि वो अपना व्यू लगा सकते हैं। हमारे मंदिर में हमारा जो भगवान का जो पुतला है उसको कोने में रखा है, आप कुछ और कर रहे हो। पैलेस के सामने जो हमारा एक सिंबल है, जैसे आपका रंगघर है आसाम, बिल्कुल, हाँ, हम लोग का एक सिंबल है, उसमें आपने खुदीराम बोस और सूर्य सेन का स्टैचू लगा के रखा है। ठीक है, मैं आदर करता हूँ सूर्य सेन, खुदीराम बोस का, उसके संग त्रिपुरा का क्या लेना देना? उन्होंने त्रिपुरा के संग क्या लेना देना? अगरतला एयरपोर्ट में आप मुजीबुर रहमान के ऊपर आप जेल रखना चाहते हो। आपने हर रास्ता का नाम बदल दिया, खुदीराम बोस कर दिया। पहले क्या नाम था उसका? नहीं, अपना जो अपना अरे आपने पूरा गांव हुकुतुइसा को आपने डुमा छोरा कह दिया। आपने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। और तब मुमकिन हुआ जब मतलब सियासत में वो लोग आए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया। और राजनीति उन लोगों के हाथ से लगे। राजनीति, ब्यूरोक्रेसी सब उनके हाथ में गया। और सच बोले तो हिंदुस्तान का, और हमारे पास इतना घटिया लीडरशिप है ना, पहले भी था, आज भी है। तो हमको तो थोड़ा पैसा फेंक दे, हम तो खुश हो जाते हैं। कोई 10 रुपए यहाँ फेंक दे, कोई थोड़ा सा शराब यहाँ दे दे, बोले पार्टी करो, चलो चलो दिल्ली चलो, सब खुश। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको रिजर्वेशन के लिए कुछ मांगे हुआ था। हुआ था, TNV अकॉर्ड हुआ, 17 से 20 मिला। अच्छा, लेकिन आप बताइए कि आपने पूरा एक हमको डिलीट कर दिया हमारे ही राज्य से। आज आप अगरतला जाके देखिए, आपको नहीं लगेगा कि ये त्रिपुरा है। इंडिजिनस पीपल है वहाँ पे? नहीं है, आपको नहीं लगेगा। तो मैंने क्या कहा कि आप बोलते हैं कि हिंदू खतरे में, अरे हम लोग भी हिंदू हैं। ये पूरा हिंदुस्तान में भाषा चल रहा है कि हिंदू मुसलमान। जो आसाम में जो लड़ रहा है, जो फॉरेनर के खिलाफ लड़ रहा है, जो पहले भी लड़ा, वो क्या हिंदू नहीं है? हम क्या हिंदू नहीं है? तो पहले हमारे बारे में ये समझना जरूरी है कि असम का इशू या नॉर्थ ईस्ट का इशू या इट इज नथिंग टू डू विद रिलीजन, इशू से मतलब इट इज टू डू विद एथनिसिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ऐसा कीजिए, एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था थोड़े दिन पहले, कहा कि अरे मुंबई तो कॉस्मोपॉलिटन है, मुंबई में तो सब आते हैं, दिल्ली में सब आता है, सबको आपको क्या परवाह है? तो मैंने कहा कि हमें परवाह नहीं है। त्रिपुरा में या फिर गुवाहाटी में भी आप बोलो, आप 10,000 सिंधी को रखने के लिए तैयार है, आप 50,000 पंजाबी को रखने के लिए तैयार है, आप 50,000 तमिल को भी रख लीजिए, आप 1 लाख क्या बोलते हैं कश्मीरी पंडित को भी रख लीजिए, हम सबको रख लेंगे।
5 लाख हो गया, लेकिन 5 लाख एक भाषा बोलने वाले को मैं नहीं रख सकता। और हमारे संग क्या हुआ है, हमने एक भाषा बोलने का, एक ही कम्युनिटी का 100 आदमी को रखा है। आप बोल रहे ना कि हम लोग 12 लाख है, बाहर के लोग अभी हमसे ज़्यादा डबल हो गए हैं। हाँ। तो ठीक है, हम डबल, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। महाराष्ट्र में भी मराठी 30% है, लेकिन 70% एक कम्युनिटी का तो नहीं है ना। सिंधी है, मारवाड़ी है, पंजाबी है, आसाम का है, नॉर्थ ईस्ट का है, कनाडा का है, दिल्ली है, यूपी वाला है, बैलेंस है। आप अगर एक ही कम्युनिटी को 70% बनाओगे, 30% महाराष्ट्र कल चिल्लाएगा, क्योंकि वो 70% एक ही भाषा में बात करेगा, एक ही लैंग्वेज है, एक ही कल्चर है। तो मैंने क्या कहा कि आप अगर रखना चाहते हैं तो एक स्टेट में एक आप थोड़ा मत रखिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ना। गुजरात में बहुत जगह है, आप रख लीजिए 5-6 लाख एक जगह में। गुजरात में आप बॉम्बे में जाके देखिए, गुजराती लोग अपने कॉलोनी में नॉन गुजरातीज को नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग को बोलते हैं कि आप पूरा देश का बोझ उठाए। तो ये कहाँ का मुमकिन, वो भी फॉरेनर्स का। तब तो इंडिया में क्या है कि दिल्ली में कोई माइंड अप्लाई नहीं करता, और हमारे लीडरशिप ऐसे हैं जो यहाँ से जाता है दिल्ली, सर जी सर जी सर, हम गुलामी कर रहे हैं। तो ये हुआ पहले जो आए थे वो लोग शरणार्थी बोल के आए, तो उसके बाद वो लोग सिटीजन कैसे बन गया, उन लोगों को कौन वो सुविधा दिया? और दूसरा बात है, घुसपैठ किस तरह से हो रहा था वहाँ? आपका बॉर्डर ओपन है, आपको हिंदुस्तान में आपका एजुकेशन मिनिस्टर के पास डिग्री नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास डिग्री नहीं है दिखाने के लिए, वो राइट आरटीआई में लुका के रखता है। हिंदुस्तान में तो आपको सर्टिफिकेट मिलने के लिए 2 मिनट लगेगा। और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, क्योंकि एक समय कांग्रेस को लगा कि अरे हम तो इंडिजिनस लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तो इंपोर्ट करो वोट, तो कांग्रेस ने किया। आज बीजेपी वही कर रही है। आप भी कांग्रेस में थे? हाँ। तो मतलब ऐसा क्या लगा कि आपको कांग्रेस से निकलना चाहिए और कांग्रेस मेरा नहीं कर रहे तो कुछ? फॉल आउट क्लियर था। मैंने सितंबर में, मैंने अगस्त में मेरा जो कांग्रेस में झगड़ा हुआ, मैंने कहा वहाँ मैं अकेला नहीं था, वहाँ में अपने चिंटू दा थे, देवव्रत साइकिया था, रिपुन बोरा थे, सब थे, मुकुल सांगमा, सोनिया गांधी, अहमद पटेल, AK एंटनी। मेरा तो क्लियर झगड़ा हुआ मेरे जनरल सेक्रेटरी के साथ। अच्छा। मैंने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हमको लड़ना चाहिए और त्रिपुरा में NRC होना चाहिए। तो मेरे जनरल सेक्रेटरी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको मेजॉरिटी कम्युनिटी के बारे में सोचना है, ये वोट बैंक, वो वोट बैंक। देखो, मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर मैंने अपना परिवार, कैप के खिलाफ थे या कैप के पक्ष में नहीं थे, उनका तो यही तो प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी का। कैप के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन NRC के खिलाफ है। नहीं नहीं नहीं, दो, आसाम में कुछ और बात, त्रिपुरा में कुछ और बात, अच्छा। मेघालय में, अच्छा आसाम में गुवाहाटी में कुछ और बात, शिवसागर में कुछ और बात, सिलचर में कुछ और बात। तो कांग्रेस पार्टी का तो एक सिंगल पॉलिसी रहना चाहिए ना। और कांग्रेस में भी बहुत लोग हैं जो ये इनको दिल से खराब लगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सकता। तो मैंने कहा कि आई कैनॉट कॉम्प्रोमाइज। तो उन्होंने कहा कि तब आप अपना केस विड्रॉ कीजिए, क्योंकि NRC का केस मेरा है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा आई कैनॉट विड्रॉ माई केस। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको करना पड़ेगा, वरना आपको। तो मैंने कहा मैं अभी इस्तीफा देता हूँ। तो एज अ सिटिंग प्रेसिडेंट मैंने रिजाइन किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये वोट बैंक के पॉलिटिक्स में मैंने अगर आज अपने लोगों से झूठ बोला तो मुझे पूरा जिंदगी सब लोग धिक्कारेंगे कि ये गद्दार निकला। मैं गद्दार नहीं कर सकता, मैं अपने लोगों के संग गद्दारी नहीं कर सकता। CPI का क्या रोल था वहाँ पे? आप मानिक सरकार कहाँ है? हिंदुस्तान का सबसे शरीफ ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर क्यों चुप है? क्योंकि व्हेन इट कम्स टू CAA कोई रिलीजन नहीं है, सिर्फ जाति है। और ये लोग जो कह रहे हैं ना कि एक्सेप्ट करो, अरे हिंदुस्तान के बारे में सोचो, वही लोग पश्चिम बंगाल में गोरखा को कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, लेकिन हमको बोलेंगे कि एक्सेप्ट करो। हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस हो, CPM हो, BJP हो, नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, नो कॉम्प्रोमाइज। तो अभी त्रिपुरा में प्रोटेस्ट किस तरह से हो रहा है? अभी कौन कर रहे हैं? कल नहीं, हम लोग कर रहे हैं। कल मैं वापस जा रहा हूँ अगरतला, सबसे मिलकर एक प्लान बनाऊंगा, क्योंकि मुझे स्ट्राइक्स, बंद्स, ब्लॉकेड्स नहीं चाहिए, उसमें आम जनता का नुकसान होता है। जहाँ तक मुझे लगता है शांतनु
कि हमको सबसे पहले ना अपने एमएलए और अपने एमपी को पकड़ना चाहिए। अच्छा। और उनको उनके परिवार के सामने उनको नंगा करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए ये है तुम्हारा बाप, ये है तुम्हारा पति या तुम्हारा वाइफ, और इन्होंने अपने जाति के संग गद्दारी किया है। अब कैसे करे, नॉन वायलेंटली करे, कैसे, उसके लिए हम प्लान निकाल रहे हैं। और ये प्लान निकाल के हम जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि ये मूवमेंट जब तक एमएलए अपना पोस्ट नहीं हारेगा ना, जब तक एमपी अपना पोस्ट नहीं हारेगा, ये मूवमेंट कभी, जिस दिन मंत्री को लगा कि वो हारने वाला है, उस दिन वो जाकर दिल्ली में बोलेगा सर बचाइए वरना हम गया। इसके लिए हमको ऑनेस्ट रहना चाहिए और इसको हमको पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं करना है, ये सोशल एजिटेशन है, ये हमारे एथनिसिटी को बचाने के लिए है, अपने जाति को बचाने के लिए, ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं है। पॉलिटिकली इससे फायदा, देखो आसाम वॉकआउट का मैंने एक चीज देखा, आसाम वॉकआउट में राजीव गांधी का 414 एमपी था, उसको घुटना में लाया ना आसाम के छात्रों ने। बिल्कुल, आसाम के लोगों ने राजीव गांधी को घुटना में लाया 414 एमपी होने के बाद भी। तो ये तो 303 है, ये क्या कर सकते हैं? तो आप जैसे देख सकते हो कि पिछले बार भी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल तब बिल था ये जब आए थे, उस टाइम में भी देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट का सब स्टेट्स एक साथ मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आ गए थे, लेकिन इस बार ये हो नहीं पाया। किस लिए? पैसा और डिवाइड एंड रूल। आपने मणिपुर को बोला कि आप बच गए, एलपी हो गया, मिजोरम को बोला आप बच गए, नागालैंड अरुणाचल को बोला बच गए, सब चुप। लेकिन अभी उन लोगों को कौन समझा कि वो लोग मतलब सेफ नहीं है। इसके लिए मैंने कहा है कि आसाम का जनता को मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड को देखकर आशा नहीं रखना चाहिए। खुद की क्षमता में आसाम अकॉर्ड किया, मणिपुर ने हम आपको दिया या अरुणाचल ने आपको दिया? नहीं, आसाम के लोग ने खुद लड़ा। अगर उपेंद्र ब्रह्मा बोडो भी लड़ा उस टाइम आसाम अकॉर्ड के लिए, तो ये लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। हाँ, त्रिपुरा आपके संग है, क्योंकि ये लड़ाई हमको भी खुद लड़ना पड़ेगा। हम लोग दोनों को या मेघालय को हमको बेच दिया है ये लीडर लोग ने, लेकिन अगर हम लोग एक रहे और अपना मोमेंटम पीसफुली, शांति से हमने लड़ा और क्लैरिटी से, और अपने लीडर को भी ऐसा रहना चाहिए जो बिके नहीं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आसाम आज बैठ गया ना, तो त्रिपुरा में हमारे पास दम नहीं रहेगा लड़ने के लिए। बिल्कुल। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी की बात है, तो आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो, जैसे कि असम एकॉर्ड के बारे में बोला, सत्रा मूवमेंट के बारे में बोला, तो उसके फसल ही एजीपी गवर्नमेंट फॉर्म किया था यहाँ पे। लेकिन इस बार एजीपी का जो रोल है, जो रोल निकला, जो देखा गया, तो उसको लेके लोग खुश नहीं है, क्योंकि वो लोग तो सीए के सपोर्ट में वोट डल के आ गए वहाँ पे। तो क्या लगता है आपको? नहीं, गण परिषद से गोइंग परिषद हो गया, क्या हो गया? आसाम गोइंग परिषद हो गया, बिकॉज गण परिषद तो रहा नहीं, गण तो लोगों का है। मैं एक समय प्रफुल्ल कुमार महंतो को बहुत इज्जत करता था, आज भी अगर मुझे मिले तो मैं उनसे पूछूंगा। भृगु कुमार फुकन को बहुत मैं मानता था, जैसे मैंने कहा उपेंद्र ब्रह्मा, ये सब, सर्बानंद IMTT रैक लेके आया वो, सब लोग एयरपोर्ट में इतने लोग, अरे आज क्या हो गया हमको? और यही बात मैं समझ नहीं सक रहा हूँ कि आज हम लोग इतने कमज़ोर क्यों हो गए। ये पद, पैसा, पावर पूरा ज़िंदगी नहीं रहेगा, लेकिन जिस दिन आपका लोग चला गया आपके हाथ से, तो ये कभी वापस नहीं आएगा। ये मैं त्रिपुरा का हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ, पावर पूरा ज़िंदगी नहीं रहता। और शांतनु, मैं आपको पावर, सब लोग बोलते पावर, मुझसे ज़्यादा, मेरे परिवार से ज़्यादा पावर किसने देखा? 800 साल तक राज किया त्रिपुरा में, पावर में ही थे 800 साल तक। आज क्या पावर है? लेकिन अपना लोग तो है अपने साथ, अपना कम्युनिटी तो है आपके साथ। इन लोगों के पास पावर है लेकिन लोग नहीं है। और एक दिन, एक समय आएगा जब सब इनको देख के बोलेंगे कि आपका पास एक चांस था लड़ने के लिए, आपने क्या किया उस समय। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये आंदोलन हम आम जनता को कष्ट नहीं देकर, हमको अपने एमएलए, अपने एमपी को पूछना चाहिए, उनके परिवार को पूछना चाहिए, उनको सोशली बॉयकॉट करना चाहिए। तो अभी बात फिलहाल सब जुडिस हो गया, कोर्ट तक चले गए, तो क्या सब जुडिस नहीं है? हाँ, लेकिन कोर्ट तक चले गए अभी फिलहाल। तो आप लोगों ने भी मतलब इसके खिलाफ अपील किया? मेरा तो खुद का पर्सनल है, क्योंकि मैंने कहा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। देखिए,
आसाम अकॉर्ड, हमारे त्रिपुरा में भी TNV अकॉर्ड है, ATTF अकॉर्ड है, और त्रिपुरा में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या है कि दो स्वाधीन देश, त्रिपुरा भी स्वाधीन देश था, हिंदुस्तान भी स्वाधीन देश हो चुका था, उन्होंने एक अग्रीमेंट किया, एक ट्रीटी किया, अकॉर्ड नहीं, ट्रीटी, अकॉर्ड अलग है, ट्रीटी अलग है। ट्रीटी किया और कहा कि आप हमारे ज़मीन, हमारे इतिहास, हमारे सभ्यता, भाषा को आप रक्षा कीजिए, अगर आप करेंगे तो हम हिंदुस्तान का एक अंग बनेंगे। सरदार पटेल ने कहा हम आपको सुरक्षा करेंगे, और इसी आश्वासन से, इसी प्रॉमिस से हम लोग दोनों एक एंटिटी बने, त्रिपुरा हिंदुस्तान का अंग बना। आज आपने उसी आश्वासन का उल्लंघन किया है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट गए और हमने कहा कि आप हमको न्याय दीजिए, क्योंकि आपने ये आश्वासन भी तोड़ा। आपने TNV में कहा कि कट ऑफ ईयर 1971 होगा, उसको भी आपने तोड़ दिया 2014 करके। ATTF अकॉर्ड में आपने कहा कि 1971 होगा, आपने फिर से तोड़ दिया 2014 करके। अच्छा, 2014 में आपने कहा है कि आदमी लोग आएंगे, लेकिन अगर वो 2018 में भी आए तो डॉक्यूमेंट तो देना नहीं है, तो वो कह सकते कि वो 2012 में आए। बिल्कुल, वो लोग वही बोल रहे हैं कि नया लोग नहीं आएगा, लेकिन जो लोग फिलहाल रह रहे हैं उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं। आप कैसा बोल सकते हैं? अब मैं आपको शांतनु पूछता हूँ, भाषा एक, देखने में एक, खाना उठना चलना एक। आप राकेश दास और रहीम मियाँ से आप अंतर कैसा कर सकते हैं? कोई सिस्टम बनाया है आपने, कोई मैकेनिज्म बनाया है? आप कैसा एक महिला बोलेगी कि मेरा 7 बच्चा है, मेरा नाम रेशमी है, और असल में उसका नाम फातिमा हो सकता है, उसके सब बच्चे हो सकते हैं। वो बोलेंगे मैं हिंदू हूँ, बोले नहीं, अरे आप हिंदू है, आपको कागज का दरकार नहीं। आप कैसा मालूम करेंगे कि वो हिंदू है या मुसलमान है? भाषा तो एक ही है, देखने में तो एक ही है, डॉक्यूमेंट आपने कहा अगर हिंदू तो डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं। तो आपने सिस्टम क्या बनाया है, आपने मैकेनिज्म क्या बनाया है? और जितने लोग आए, ये मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि सब लोग परसिक्यूटेड होके आए, कोई मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ के भी आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज त्रिपुरा में जो बंगाली पॉपुलेशन है, उनका इकोनॉमिक इनकम हमसे ज़्यादा है। अगर हम महीने का 5,000 कमाते हैं तो वो 15,000 कमाते हैं। आप जाके देख के आइए कि यहाँ में जो बोलते परसिक्यूटेड है, उनका इनकम कार्बी आंगलोंग से, बोडो एरिया से, दिमासा से, असमिया से, अहोमिया से ज़्यादा है। तो वो परसिक्यूटेड कैसे हुए? और गवर्नमेंट मतलब किस तरह से मेजर करेगी उन लोगों की कैसे परसिक्यूटेड हुए? नहीं, कौन लोग परसिक्यूटेड हुआ? मैं आपको और एक बात बोलता हूँ, ये बोलते हैं कि पूरा विश्व में, आजकल बहुत बड़ा बात है कि पूरा इंडिया में, पूरा विश्व में, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, अच्छा नेपाल भी तो हिंदू है, तो नेपाल हिंदुस्तान के मदेशी को क्यों नहीं लेता? अच्छा, ब्रेग्जिट क्यों हो रहा है इंग्लैंड में? इंग्लिश ने, यूरोप भी तो लार्जली क्रिश्चियन है ज़्यादा करके, तो क्यों ब्रेग्जिट कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना इंग्लिश का अपना आइडेंटिटी बचाना है। ठीक है, आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, हमारे तो बहुत अच्छे दोस्त है ना मोदी जी के, डोनाल्ड ट्रंप, वो क्यों बोल रहा है कि मैक्सिको में वॉल बनाएगा? मैक्सिको भी तो क्रिश्चियन है, अमेरिका भी तो लार्जली क्रिश्चियन है, तो वो क्यों दीवार बनाने का बात कर रहा है? क्योंकि उनको अपना आइडेंटिटी बचाना है। ठीक है, तो जब ये लोग करते हैं तो ठीक है, हम लोग को आपने डंपिंग ग्राउंड क्यों बनाया? इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ, कोई जो बांग्लादेश से आएगा, कोई जाके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली में नहीं बैठेगा, क्योंकि उनका सिस्टम है यहाँ में, उनका MP है, आसाम से होगा या त्रिपुरा से होगा, वो वहाँ जाके क्यों बैठेगा? तो आपने एक सिस्टम बनाया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में आज जो हमारा रीजनल पार्टी से जो चुप है, अगर उन्होंने आज वो चुप रहे तो आने वाले दिन में ना रहेगा रीजनल पार्टी, ना रहेगा अहोमिया, असमिया या त्रिपुरासा। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। এই ধৰণে যি প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছে আচলতে ত্ৰিপুৰা, সেই যি প্ৰথমতে আপোনাৰ মনত প্ৰশ্নটো আছিল অসমীয়া ত্ৰিপুৰা, যিটো কথা কওঁ যে অসমীয়া ত্ৰিপুৰা দ্বিতীয় ত্ৰিপুৰা হ'ব নালাগে, আচলতে সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ চাগে আপোনালোকে পাই গৈছে। আৰু বহু প্ৰশ্ন আছে, বহু উত্তৰ আছে। উভতি আহিম এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। আমি কথা পাতি আছোঁ কা বিৰোধী আন্দোলন আৰু অসম কিয় দ্বিতীয় ত্ৰিপুৰা নহ'ব, দ্বিতীয় ত্ৰিপুৰাত
হ'লে কি হ'লহেঁতেন, আচলতে ত্ৰিপুৰাত কি হৈ আছে, আৰু সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাই গৈছে ত্ৰিপুৰাৰ মহাৰাজ প্ৰদ্যুৎ দেৱবৰ্মন আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা, এটা দীঘলীয়া ইতিহাস বহন কৰে ত্ৰিপুৰাই, আৰু ত্ৰিপুৰাত যি ৰজাদিনীয়া এক পৰম্পৰা আছিল তাৰ পিছত স্থানীয় লোকসকলৰ আচলতে কি অৱস্থা হৈছে আজি সেই কথা সেই সম্পৰ্কে অৱগত কৰি গৈছে। যিহেতু আমি ত্ৰিপুৰাৰ কথা কওঁ, সেই সম্পৰ্কে ত্ৰিপুৰাবাসীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আজি তেখেতে এইসমূহ কথা কৈ গৈছে। আমি পুনৰ ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰসংগলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, আচলতে ত্ৰিপুৰাত কি হৈছে। যিহেতু আমি অসমৰ কথা কওঁ যে কা হোৱাৰ পিছত আচলতে অবৈধ নাগৰিক, যিখিনিক আমি অবৈধ নাগৰিক বুলি কৈছিলোঁ, আচলতে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত এই কথাটো আছিল হিন্দু হওক মুছলমান হওক অতিৰিক্ত বিদেশীৰ বোজা আমি নলওঁ। কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো এতিয়া কা হোৱাৰ পিছত কি হ'ব পাৰে, যিটো হিন্দু বঙালীৰ বা হিন্দু বাংলাদেশী, আচলতে বঙালী বুলি কথাটো নাই, হিন্দু বাংলাদেশী বুলি যিখিনি মানুহক কৈছে। কিন্তু হয় এটা কথা স্পষ্ট যে ভাষাটো আচলতে বঙালী ব্যৱহাৰ কৰে। পুনৰ মই प्रद्युत देवबर्मा उस आहिब विचारिছোঁ। अभी मतलब जो लैंग्वेज का सवाल है, असम में भी ये उठ रहा है कि अगर का हो गया तो हम लोगों का लैंग्वेज मतलब ख़त्म हो जाएगा, एक समय आएगा ख़त्म हो जाएगा, हम लोग अपने लैंग्वेज में बात नहीं कर पाएंगे, अपना लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अभी त्रिपुरा में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, प्राइमरी लैंग्वेज कौन सा है, सेकेंडरी प्राइमरी लैंग्वेज बेंगली, सेकेंड हमारे ककबरक है, सेकेंड ककबरक, द्वितीय ककबरक। ककबरकটো আচলতে জনগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰকৃততে ব্যৱহাৰ কৰি অহা ভাষা আছিলে, কিন্তু এতিয়া দ্বিতীয় ভাষালৈ পৰিণত হৈছে। ये मतलब कब से था? ये पहले से पहले तो ककबरक प्राइमरी लैंग्वेज हमारा नहीं, पहले हमारा इंडिपेंडेंस के बाद। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। ककबरक हमारा लैंग्वेज है, बंगाली भी स्वीट लैंग्वेज है, मीठा लैंग्वेज। हाँ। लेकिन आप एक लैंग्वेज को इम्पोज नहीं कर सकते हो डे इन डे आउट और कहो कि अपना मातृभाषा आप भूल जाए। मैंने इस इंटरव्यू से आने से पहले मुझे एक SMS मिला, एक बहुत बड़ा लीडर है वेस्ट बंगाल से, उन्होंने कहा कि महाराजा आसाम में बराक वैली में हम लोग असमिया लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बंगाली ही लैंग्वेज होगा। अब मेरा एक बात कहना है, आप जब स्टेट में जाते हो, जब आप अमेरिका जाते हो तो आप इंग्लिश बोलते हो ना, आप जब दिल्ली जाते हो तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं। तो अगर आप उस स्टेट का आपको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, अगर आपको लगता कि आप ही का लैंग्वेज, आप ही का कल्चर सबसे बड़ा है और आप जिस जगह में आप जा रहे हो उस जगह का आपने भाषा को, सभ्यता को, कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलत है। जैसे मैंने कहा कि आप रिजर्वेशन देख लीजिए, आज त्रिपुरा में आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं बाद में एसमीज में और बोल सकते हैं, त्रिपुरा में हमारा जो रिजर्वेशन है वो 30% है। अच्छा, हमारे लोगों को 30% है, तो मतलब आपने कह दिया कि 70% किसी और को मिल रहा है। वो 70% कौन है? और आज ये जो हमारे साथ हुआ है, ओरिजिन जो था, ओरिजिन तो आप लोग ही थे वहाँ पे, तो आज जो हमारे 70% बन गए अभी, आज जो हमारे संग हो रहा है, मैं आपको लिख के गारंटी देकर बोल सकता हूँ कि ये आसाम में होगा। और मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग हिंदू के खिलाफ नहीं है। मेरा आंदोलन, मेरा जो हमारा जो मूवमेंट है, जो बंगाली मुसलमान है वो भी बाहर का है, जो बंगाली हिंदू है वो भी बाहर का है। हमने पहले से रखा है, जितना रखा है ठीक है, और अब नहीं रख सकते। और अगर आपको रखना भी है तो हमारे स्टेट से भी बहुत लोग हैं, आप जाकर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एक स्टेट, एक लैंग्वेज, एक कम्युनिटी को इतना नहीं रख सकता। ये मेरा क्लियर पॉइंट है। यहाँ के आसाम गवर्नमेंट बोल अगर रही है आप कल बोलेंगे ना, हाँ, तो बोलेंगे कम्युनल है। अगर आप एसमीज के बारे बोलेंगे तो वो लोग बोलेंगे कम्युनल है। मैं आज जब मैं अपने कम्युनिटी के बारे में बोलता हूँ तो बोलते हैं कम्युनल, लेकिन जब वो एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में रखना चाहते हैं, क्या लेना देना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का? जब आप असम आते हो तो लोकप्रियनाथ गोपीनाथ बरदलोई के वहाँ आते हैं। आप जब महाराष्ट्र जाते हो छत्रपति शिवाजी, ठीक है। आप जब इंदौर जाते हो तो अहल्याबाई होलकर देवी, सब जगह का एक कैरेक्टर है। आप वो कैरेक्टर को क्यों बदलना चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है कि आप ही का कल्चर सुपीरियर है। एसमीज त्रिपुरी कल्चर तो कुछ नहीं है। लेकिन वो चुप रहेंगे जब तक पावर नहीं मिलता। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, ये असम के साथ भी होगा।
और ये- बाकी स्टेट भी सेफ नहीं ये होगा। उनको देखिए, इनको आइडिया नहीं है। हम्म, मैं कह रहा हूं कि आप हमारे खुदीराम बोस का क्या रोल है त्रिपुरा में, हम्म, सूर्य सेन का ठीक है बहुत। आज मुजीबुर रहमान जिसने आज तक त्रिपुरा में नहीं आया, उसके नाम में हम अपना यही जो कम्युनिस्ट लोग, यही जो कम्युनिस्ट लोग पश्चिम बंगाल में विक्टोरिया मेमोरियल को रखते हैं। हम्म, विक्टोरिया मेमोरियल तो कोई विदेश का रानी ने बनाया था, हाँ, लेकिन त्रिपुरा में अपना जो हमारा ट्राइबल लोगों का एक पैलेस है, उसका नाम हम बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि वो लोग हटाना चाहते हैं कि ये एक राज्य था जहां में ट्राइबल लोग राजा थे, पूरा इतिहास ही ये मिटाना इतिहास ही चाहते हैं। मिटाना चाहते हैं। लेकिन ये जो इंडिजिनस ट्राइबल बोलते हैं, हम लोग तो इंडिजिनस बोलते हैं, ये 2019 से, ये 1970 का इंडिजिनस ट्राइबल नहीं है। हम्म, और हम लोग भी जवाब देना जानते हैं। और अगर ये लोग बोलते हैं कि अरे प्रद्योत विक्रम किशोर मानिक्य तो कम्युनल है, हम्म, मैंने अपना जाति के बारे में बोला तो मैं कम्युनल हूँ, मैंने कभी किसी के खिलाफ बोला? हम्म, और अपने कम्युनिटी के बारे में बोलने में क्या कम्युनल बात है? शांतनु, मैं आपसे पूछता हूँ, जब 9/11 के बाद सिखों के ऊपर सब लोग मार रहे थे पूरा वर्ल्ड में, क्योंकि उनको वो टर्बन था, टर्बन बैन भी हुआ था फ्रांस में, तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखा फ्रेंच प्रेसिडेंट को और बोला कि सिख कम्युनिटी को आप बचाइए, हाँ। ये उनके ऊपर अटैक्स हो रहा है फ्रांस में, आप बचाइए, ये टर्बन हमारा एक सिंबल है। आइडेंटिटी है। कोई ने उसको कम्युनल नहीं बोला। हम्म, ये अपना ये अमिताभ बच्चन ये बोलते रहता है कि मैं इलाहाबाद का हूँ, उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कोई तो नहीं बोलता कि अमिताभ बच्चन अपना कम्युनिटी के बारे में बोलता। शत्रुघ्न सिन्हा बोलते रहता है बिहार का बाबू, बिहारी बाबू, बिहारी बाबू। कोई ममता बनर्जी बोलता है बने माँ, ही थे, still नहीं, बने माँ ही थे माटी अपनी मानुष, भाषा और मतलब मानुष, culture के मानुष ऊपर। कौन है? हाँ। जब ममता बनर्जी बोलता है माँ माटी मानुष, वो मानुष में क्या कामतापुरी है या गुरखा है या बिहारी है? नहीं, मानुष, भद्र लोग। तो जब हमने अपने बारे में बोला तो हम कम्युनल, वो लोग बोले तो ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग के बीच में यूनिटी नहीं है, बिल्कुल। हम लोग के बीच में एकता नहीं है। जिस दिन एकता आ जाए ना, हम लोग वापस अपना पोजीशन में आ जाए। तो क्या लगता है आपको एकता किस तरह से आएगा? एकता आता है जब झटका मिले। आसाम के लोग भी बहुत लाहे लाहे हो गए थे। आसाम वॉकआउट के बाद ये अच्छा झटका मिला है आपको। आपको शेकअप चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा हिलना चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ता है कि आप कौन है। वरना ज़्यादा कंफर्टेबल होने से ना, बाहर के लोग या जो भी सिस्टम चलते रहता है, आप आराम से चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी अर्थक्वेक आना चाहिए। ये थोड़ा सा अर्थक्वेक आया है। आपको क्या लगता है ये जो हम लोगों का छोटा छोटा राज्य है, इसका जो प्रॉब्लम्स है, खुद का प्रॉब्लम्स है, हम लोगों का अपना प्रॉब्लम है कुछ, इंडिया का मतलब मेन स्ट्रीम का प्रॉब्लम से जुड़ नहीं सकते हम लोग, तो इसके लिए हम लोगों का रीजनल पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए? रीजनल पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए जहाँ में, देखिए एक टाइम था मेघालय में कैप्टन विलियम सांगमा, वो जो भी बोले, एक टाइम था एस.सी. जमीर, जब वो अपने टाइम में वो थे। आसाम में अपने अब एजीबी मूवमेंट ही देख लीजिए आप। पुर्नो सांगमा भी एक टाइम में अपना एक लीडरशिप निकला था जो दिल्ली जाकर अपने बलबूते में, हितेश्वर साइकिल का देख लीजिए, बलबूते में जाकर बोलता था कि ये आसाम का प्रॉब्लम है, आप मेरा बात सुनिए, इंदिरा गांधी होगा, कुछ होगा, लेकिन आप पहले हमारे बारे सुनिए। आसाम का लोग ने हमको एमएलए एमपी बनाया है, आपने नहीं बनाया है। एक डेप्थ था लीडरशिप में, इंटेलेक्चुअल था, इंटेलिजेंस था, ऑनेस्टी था। आज क्या हो रहा है कि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली ब्रीफ केस लेकर, और ब्रीफ केस लेकर वापस आ रहे हैं और बोले सर सर सर, जो एकदम ठीक सर, एकदम। और ये जो जी हजूरी कल्चर है, जब तक ये नहीं टूटेगा, हम लोग का स्थिति ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, आप साउथ इंडिया को, आप आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, जब तक वाईएसआर रेड्डी था सब ठीक था। जिस दिन वो गया, वो दिल्ली में जी हजूरी करने सब गए, खत्म हो गया पूरा पॉलिटिक्स। तो हमको भी एक ऐसा लीडरशिप निकालना चाहिए जो पैसे के पीछे नहीं भागे, जो अपना रीजनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करे। वो अभी नहीं हो रहा है।
और उसके लिए ये मूवमेंट भी इम्पोर्टेंट है। पूरा नॉर्थ ईस्ट एक साथ कुछ सोच पूरा सकते नॉर्थ हैं, ईस्ट कुछ एक देख संग सकते कभी हैं? नहीं होगा शांतनु, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आसाम और त्रिपुरा का प्रॉब्लम एक है, मेघालय का प्रॉब्लम थोड़ा एक है, तो आपका बाउंड्री डिस्प्यूट है लांगपी में, हाँ। ठीक है, उसको आप हटाइए और अपना मेन, क्योंकि आपको फ्यूचर में दिल्ली नहीं बचाएगा। यहाँ ये बाहर से लोग आते हैं, लिखते किताब बैटल ऑफ सरायघाट, हाँ। कोई नहीं लिखा बैटल ऑफ, उनको क्या मालूम है बैटल ऑफ सरायघाट। हमारा यूनिटी तभी आता है जब हम लोग को एक कोने में आप पुश करते हो। तो आज हम लोग सब कोने में हैं, तो अभी समझना जरूरी है ये बात को। और जो कोने में वही समझेगा। जिसको लगता है कि वो बच गया, जैसे कि अरुणाचल मिजोरम को लगता है वो बच गया, वो नहीं बचा है, लेकिन वो भी एक दिन कोने में आएगा। उस समय हमको भी उनको मदद करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम हमको एक संग होकर एक ऐसा स्ट्रेटजी निकालना चाहिए जहां में वायलेंस भी ना हो, लेकिन अपना मैसेज पहुंचे और ये बिल नॉर्थ ईस्ट में लागू ना हो। গতিকে আমি কথা পাতি আছোঁ মহাৰাজা প্ৰদ্যুতৰ সৈতে, আৰু তেখেতে জনাই গৈছে যে আচলতে কি ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, ত্ৰিপুৰাত কি হ'ল, অসমত কি হ'ব পাৰে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে কি ধৰণে চিন্তা কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আৰু অধিক তথ্য আছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত। উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। আমি কথা পাতি আছোঁ কা বিৰোধী আন্দোলন সম্পৰ্কে, আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আজি ত্ৰিপুৰাৰ মহাৰাজ, আৰু তেখেতে কৈ গৈছে যে ত্ৰিপুৰাত আচলতে কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিল, কি ধৰণে সেই ৰাজকীয় ইতিহাসৰ পৰা গৈ আজি এক নতুন ইতিহাস ত্ৰিপুৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেইবাবেই কৈ থকা হৈছে যে অসম দ্বিতীয় ত্ৰিপুৰা হ'ব নালাগে, তাৰ বাবে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন, কাই কি ক্ষতি কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমি জনাই গৈছোঁ। তাৰ বাবে ৰাজনৈতিক কিছু বিকল্পৰ প্ৰয়োজন আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল একত্ৰিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন, সেই সম্পৰ্কেও চিন্তা চৰ্চা ইতিমধ্যে চলিছে। আৰু আঞ্চলিক ৰাজনীতি সম্পৰ্কেও কথা বতৰা আমি পাতি গৈছোঁ। মই পুনৰ প্ৰদ্যুৎ দেৱবৰ্মনৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ। जहाँ तक अपने पॉलिटिक्स के बारे में बोला, नेसो का क्या रोल हो सकता है इसमें? क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट को यूनाइट करना है आइदर पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोले तो नेसो यहाँ का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा शक्ति है, लेकिन नेसो का रोल अभी किस तरह से दिखाई जा रही है आपको नॉर्थ ईस्ट में? देखिए, नेसो मैं जैसे मैंने कहा, मैं पहले से नेसो के संग इन्वॉल्व हूँ थ्रू TSF, त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन। सैमुअल भी जो प्रेसिडेंट है नेसो का अच्छा दोस्त है हमारा। लेकिन मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि असम के लोगों को मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन नहीं बचाएगा, या फिर ऑल अरुणाचल स्टूडेंट्स यूनियन नहीं बचाएगा। असम के फ्यूचर को अगर कोई बचा सकता तो असम के स्टूडेंट्स ही बचा सकते, कोई मणिपुर या त्रिपुरा या KSU नहीं बचा सकता, खासी स्टूडेंट्स यूनियन। तो आप इतना आशा भी मत रखिए कि वो आपके लिए लड़ेगा। आज के आपके संघर्ष में हम मॉरली आपके संग रह सकते हैं, सिंपैथेटिकली रह सकते हैं, लेकिन आपको अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। और मैं भी समझ गया हूँ कि त्रिपुरा में मुझे अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, खुद को लड़ना होगा। और आपने नेसो को इतना बड़ा बनाया है, नेसो आज इतना बड़ा बना है बिकॉज ऑफ आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन। आसाम अकॉर्ड के बाद ही नेसो बड़ा बना, उसके पहले नेसो कुछ था नहीं। और आसाम अकॉर्ड खासी स्टूडेंट्स यूनियन से बड़ा नहीं बना, आसाम अकॉर्ड त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन से नहीं बना, मिजो स्टूडेंट्स यूनियन से नहीं बना, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन से बना। तो ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन को ही फ्रंट में रहकर अपने आप को असम के लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये नेसो ठीक है, समुजल है, ही इज़ अ गुड मैन, एडवाइज़र है, लेकिन आपको भी खुद अपना क्षमता बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि God only helps those who help themselves, and you have to help yourself in this fight. मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ आदमी लोग बोल सकते हैं कि नहीं हम सब आपके साथ है, सब आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपने देखा जब से ये पास हुआ सब अपने इंटरेस्ट में वापस पीछे चले गए। तो इस लड़ाई में त्रिपुरा खुद लड़ रहा है, असम खुद लड़ रहा है, मेघालय शायद खुद लड़ रहा है, वरना और कोई नहीं लड़ रहा है। यहाँ में जो हो रहा है, दूसरा एक बात है कि असम का गवर्नमेंट यही बोलने के लिए, कन्विंस करने के लिए ट्राई कर रहा है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो गया। जो मतलब आपका जो त्रिपुरा का इशू है वो हो गया हिंदू बांग्लादेशी, असम का इशू है हिंदू मुस्लिम बोथ बांग्लादेशी, दोनों बांग्लादेशी लोग। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुस्लिम बांग्लादेशी का जो मतलब घुसपैठ है वो ज़्यादा हो गया, तो उसको थोड़ा बैलेंस रखना भी ज़रूरी होता है। इस तरह का एक थ्योरी देने के लिए, कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो त्रिपुरा के साथ क्या हुआ? त्रिपुरा के साथ हिंदू बांग्लादेशी या मुस्लिम बांग्लादेशी, उसका बैलेंस में मैं आपको सोल्यूशन दूं? हाँ बोलिए। आप ऐसा कीजिए, बैलेंस रखना है ना आपको, तो आप आसाम से दिमासा, बोडोज,
पाथरकांडी हाइलाकांडी में रंगखोल है, खासीज है, गारोज है, उनको त्रिपुरा भेज दीजिए, हम भी बैलेंस कर देते हैं। करेंगे? नहीं करेंगे। ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आप कुछ भी बोलना चाहे करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको बैलेंस ही करना है तो आप मिजोरम में रख लीजिए, नहीं रखेंगे क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं है। इनको असम जीतना है। असम में 14 एमपीज है और अगर असम अपने हाथ में रहा तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। असम तो 60% ऑफ एमपी सीट्स असम से हैं। तो उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स देखना है, उनको पावर देखना है। अपना पावर के लिए वो जो भी कुछ बोले, मैंने इसी के लिए कहा, आज कोई मुझे नहीं कह सकता कि मैं कांग्रेस का लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस को भी दो गाली बकता हूँ, क्योंकि दोनों पार्टी ने, कांग्रेस ने एक धर्म के लोगों को लाया, आज बीजेपी एक धर्म के लोगों को लीगलाइज कर रहा है। तो दोनों ने एक ही चीज किया है, लेकिन ओरिजिनल, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ हम तो हिंदुस्तान के हैं, पहले हमारे बारे में चिंता कीजिए। वो तो पड़ोसी है, उनको उनसे क्या प्यार है इतना। जब मोदी जी बोलते हैं भाइयों बहनों, भाई भी इंडिया में, बहन भी इंडिया में, वो तो बांग्लादेश का है। लेकिन नहीं, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है और कांग्रेस ने किया तो आज उनके पास कोई पोजीशन नहीं है। बराक वैली में कुछ और कहता है, गुवाहाटी में कुछ और कहता है। इसलिए मैंने रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में बोला। असम में भी देखा जाए कि रीजनल पॉलिटिक्स में जो है एजीपी अभी बीजेपी के साथ है। इस तरह से त्रिपुरा का रीजनल पार्टी का रोल क्या रहा? एजीपी और त्रिपुरा का रीजनल पार्टी से उनका ट्रेजेक्टरी एक ही है। दोनों के लीडरशिप बहुत बूढ़े हो गए हैं। उन्होंने यंग लोगों को चांस नहीं दिया है और यंग लोग को एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। आज ये आपके एजीपी जो आंसू मूवमेंट से निकला, आज दे ऑल 55, 60, 65, वो क्या स्टूडेंट लीडर्स हैं। नया स्टूडेंट लीडरशिप कहाँ निकल रहा है? तो एजीपी को अगर अपने आप को रखना था, या फिर अपने आप को बंद करके वो एजीपी बोल दीजिए बीजेपी, या फिर नया पॉलिटिकल सिस्टम को निकलना चाहिए जहां में यूथ को, जहां में इंटेलेक्चुअल्स को, जहां में प्रोफेशनल्स को एक मौका मिले। आज तो जो पॉलिटिकल स्पेस जो ऑक्यूपाई करके रखे हैं आसाम में या फिर त्रिपुरा में भी, सब ओवर द टॉप है, सब बूढ़े हैं, उनका बेस्ट डेज उनके पीछे है, उनमें कोई पेट के अंदर कोई आग नहीं है लड़ने के लिए, तो सुस्त हो गए हैं। तो आपका और हमारा एक ही सिचुएशन है। लेकिन त्रिपुरा में मैंने क्या किया है, त्रिपुरा के भी रीजनल पार्टी अभी गवर्नमेंट के साथ है, बीजेपी के साथ है। अब त्रिपुरा में इंडिजिनस लोग, क्योंकि 70 साल तक हम लोग लात खाए हैं, हमको ह्यूमिलिएशन हुआ है, हमको चोट पहुंचा है, हमारे अंदर एक अब ताकत आ गया है। हम लोग कोकबोरक में बोलते हैं थंचा मतलब कि एकता, और ये थंचा आ गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो आप लोग माइनॉरिटी बन गए हो, फिर भी मतलब आप लोग सरकार बना पाओगे? आप चिंता नहीं करो, कुछ चिंता नहीं करो। माइनॉरिटी होने से भी क्या है, हम लोग का जो वोट है वो यूनाइटेड है और ब्लॉक में हम लोग हैं। हमको इग्नोर करके अगर कोई ने कुछ किया तो पावर में नहीं आएगा। तो अब हम लोग यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड नाउ, नोबडी कैन डिफीट अस राइट नाउ, बिकॉज हम लोग को एक अंदर से एक वो चोट है। एनआरसी को लेके क्या स्थिति है त्रिपुरा में? एनआरसी भी सा रहे हो आप लोग? एनआरसी हमने खुद फाइल किया था इन द सुप्रीम कोर्ट, मैंने खुद ही एनआरसी के लिए किया था, और हमारा स्टांस एनआरसी में क्लियर है, हमको एनआरसी त्रिपुरा में चाहिए। लेकिन एनआरसी में अगर हिंदू बाहर से आया है उसको भी नहीं रखेंगे, जो बांग्लादेशी मुसलमान आए उनको भी नहीं रखेंगे। एनआरसी जाति, धर्म, भाषा के हिसाब से नहीं होगा। जो इलीगल है वो इलीगल है, उनको हम त्रिपुरा में एमएलए, एडवोकेट जनरल, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बना सकते हैं। हिंदुस्तान में दलाई लामा भी है, रेफ्यूजी है दलाई लामा, वो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री तो नहीं है। तो रेफ्यूजी को एक रेफ्यूजी स्टेटस हिंदुस्तान में होना चाहिए, वो घूमे, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनको हमारे एरिया में उनको राइट टू फ्रीडम है पूजा के लिए, जो फंडामेंटल राइट्स है आप दीजिए उनको, लेकिन राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है। बहुत लोग नहीं जानते हैं राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप उनको वोटिंग मत दीजिए। यही हमने डिमांड किया है, और एनआरसी त्रिपुरा में होना चाहिए, आसाम में होना चाहिए। बेस ईयर 70 नहीं, हमारा बेस ईयर तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वही है, 51 ही है।
नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बोलिए, हाँ। मैं कुछ बोलूंगा तो वो बोलेंगे अरे ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के देखिए। लेकिन आप लोगों ने 71 बेस ईयर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ 71 सिर्फ आसाम अकॉर्ड करके हुआ है। हमारे वहाँ में ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि 71 होना चाहिए। तो लेकिन अभी तो अमित शाह बोल रहे हैं कि एनआरसी लाएगा, वो लोग पूरा देश में एनआरसी लाएंगे, तो लाइए ना, बेस ईयर होगा तो उसको एक्सेप्ट करते तो आज मोदी जी ने कह दिया कि नहीं लाएंगे। आप पहले अपना माइंड मेकअप कीजिए और लाइए ना, हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन एनआरसी जाति, धर्म और भाषा के हिसाब में नहीं होगा। एनआरसी होगा जो भी बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है। अगर वो बांग्लादेश का है उसको हिंदुस्तान में, हमारे स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में, असम में वोटिंग राइट्स, और वो हमारा लीडर नहीं बन सकता, वो हमारा नौकरी नहीं छीन सकता। ये हमारा हिंदुस्तान का संविधान है। अगर आपको बदलना है तो आप हमसे, तब हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। मास मूवमेंट किस तरह से हो सकता है त्रिपुरा में, आप बोलिए। मास मूवमेंट के लिए आपको अपने 60 एमएलए को पकड़ना पड़ेगा। हर एरिया में 60 एमएलए को पकड़िए और उनको बोलिए कि दिल्ली को बोले कि अगर हम नहीं गए ना इस लाइन में तो ये स्टेट में आपका सरकार नहीं बनेगा। और आसाम में 125 एमएलए को भी अब ऐसे पकड़िए, तभी हो सकता है कुछ। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो आप लास्ट में असम और त्रिपुरा, ये दोनों स्टेट अभी फिलहाल सफर कर रहे हैं, तो ये दोनों स्टेट एकजुट होकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कुछ मतलब है आपके पास? है, अगर हमने यंग लीडर्स को एक चांस दिया बात करने के लिए। त्रिपुरा में तो हमने अपना माइंड मेकअप कर दिया, त्रिपुरा में हम यूनाइटेड हैं। त्रिपुरा में हमको इतना आसान से कोई हटा नहीं सकेगा। और हम जवाब देंगे, इलेक्शन में जवाब देंगे, सोशली जवाब देंगे, लेकिन वायलेंस नहीं करेंगे। और त्रिपुरा में हमने अपना माइंड मेकअप कर दिया है, क्योंकि 70 साल से हम आस्ते आस्ते हम लोहा बन गए हैं, हम तो जवाब देंगे। असम को क्या करना है? असम को सबसे पहले उन्होंने डिवाइड किया है, कहा कि 6 शेड्यूल एरियाज। मैं सबसे पहले अपने बोडो भाई को, दिमासा, कार्बी को बोलना चाहता हूँ, ये जो आपको एग्जेम्प्ट किया गया है ना 6 शेड्यूल, कुछ नहीं होता, क्योंकि 6 शेड्यूल में राइट टू प्रॉपर्टी आपका नहीं है, लेकिन 6 शेड्यूल में आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा। त्रिपुरा में अपने 6 शेड्यूल एरिया में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, लेकिन वोट दे सकता है। ठीक है, एडीसी में वोट नहीं दे सकता, लेकिन असेंबली में वोट दे सकता है। और जिस दिन उनका वोट पड़ गया, आप समझ लो बहुत जगह हैं जहां में हमारा पॉपुलेशन 35-40% है एडीसी एरिया के अंदर, और बाहर के लोगों का पॉपुलेशन 60% है, क्योंकि वोट के आधार में हो गया। आपका एमएलए रहेगा लोकल, लेकिन बनाएगा आपको आपका एमएलए को कोई बाहर का आदमी। तो ये जो बताया गया है कि ईडीसी एरिया 6 शेड्यूल एरिया आपको प्रोटेक्ट करता है, कुछ नहीं प्रोटेक्ट करता, ये गलत बात है। आप पहले एक बार जाके कानून पढ़ लीजिए। मेरे बोडो भाई को मैं बोल रहा हूँ, कार्बी और दिमासा को पढ़ लीजिए। आपका लीडर आपको धोखा दे रहा है पावर के लिए, लेकिन ये आपके आंख में काला एक पर्दा है। और एक बार लास्ट में और एक बात बोल लीजिए आप, जैसे कि कोकबोरोक आप लोगों का सेकेंड लैंग्वेज बन गया, प्राइमरी लैंग्वेज अभी बंगाली बन गया। तो त्रिपुरा का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे हिंदू बांग्लादेशी भी है, मुस्लिम बांग्लादेशी भी है। तो सेंसस में वो लोग, मतलब मुस्लिम बांग्लादेशी लोग कभी कोकबोरोक सीखने का कोशिश किया, मतलब बात किया, उसमें लिखा, या फिर मतलब दोनों हिंदू बांग्लादेशी और मुस्लिम बांग्लादेशी एक साथ मतलब बंगाली लिख दिया? शांतनु, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं पॉलिटिक्स में आया था तो मेरे खिलाफ एक आरोप था, प्रद्युत तो बांग्ला बोलते पारे ना, उन्हें राजनीति करते पारबेन ना। बंगाली में मतलब कि प्रद्युत तो बंगाली नहीं बोल सकता, तो राजनीति नहीं कर पाएगा। मेरे खिलाफ मर्डर केस नहीं है, मेरे खिलाफ रेप केस नहीं है, करप्शन केस नहीं है, चोर नहीं हूँ, लेकिन मेरा डिस्क्वालिफिकेशन क्या था कि आमी बांग्ला कथा परिष्कार दिए बोलते पारे ना। और जो लोग मर्डरर था, रेपिस्ट था, करप्ट था, चोर था, बांग्ला परिष्कार बोलते पारे तो उन्हीं ठीक আছে আমার मंत्री हो जाबे, वो मेंडो है। ये एटीट्यूड है। लेकिन वो लोग ने पिछले 70 साल में मेरे लैंग्वेज का एक भाषा नहीं बोला, सीखने का कोशिश भी नहीं किया कभी भी। नहीं। आज आप देखिए गवर्नमेंट का जो स्कूल वगैरह है, तो स्कूल में लैंग्वेज प्राइमरी बंगाली, अब सीए आप देखिए, सीए चल रहा है, सीए चल रहा है। हमारे हिंदुस्तान का सबसे शरीफ मुख्यमंत्री एक समय था ना, मानिक सरकार, चुप
क्यों? क्योंकि वहाँ में रिलीजन में कुछ मतलब नहीं रहता, यूनिटी आता है ऑन कम्युनिटी एंड लैंग्वेज बेस। जातिवादी वहाँ पे सब कुछ बन गया। ये बात हिंदुस्तान नहीं समझ रहा है, असम समझता है, त्रिपुरा समझता है, और जवाब भी आपको और हमको अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप और हमने जवाब नहीं दिया ना तो कोई और जवाब नहीं देगा, और जवाब देने के लिए मैं त्रिपुरा से तैयार हूँ। आप आसाम से 5-6 लीडर को निकालिए जो ऑनेस्ट है, जो सिंसियर है, जो केपेबल है, जो हमेशा पॉलिटिक्स नहीं देखता, जो हमेशा इलेक्शन वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं देखता। संघ उसको लेके आइए और जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको পেলাই নহম ভাই, ধন্যবাদ। আৰু আমি এইদৰে আমি কথা পাতিছিলোঁ মহাৰাজ প্ৰদ্যুতৰ সৈতে। আৰু ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰাত যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে, ত্ৰিপুৰাৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ পিছত অসমত যেতিয়া কাৰ প্ৰসংগ আহে আৰু সেই সময়ত কোৱা হয় যে অসম যাতে দ্বিতীয় ত্ৰিপুৰা নহওক, আমি বিভিন্ন প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিলোঁ। উত্তৰ নিশ্চয় অসমবাসী ৰাইজে পাইছে। আচলতে কাৰ বিৰোধিতা যিসকলে কৰি আহিছিল তেওঁলোকৰ মনত নিশ্চয় কিছু প্ৰশ্ন থাকি গৈছিল যে ত্ৰিপুৰা আচলতে অসম দ্বিতীয় ত্ৰিপুৰা হ'লে কি হ'ব তাৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে। গতিকে প্ৰশ্ন বহুত আছে, উত্তৰ সম্ভাৱনীয়তা পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি সবিশেষৰ পৰা মহান্ত